میری ساس ہر رات مجھے تیل سے مالش کرتی تھی اور کہتی کہ اس سے زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن اس تیل سے عجیب طرح کی بدبو آتی۔ میں رات بھر سوچتی رہی۔ صبح اٹھی تو سر پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، بخار بھی ہے، دل بوجھل ہو رہا ہے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ایک بہانہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے چھٹکارا مل جانا تھا، مگر انہیں تو جیسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ارے معمولی سا بخار ہے، شام تک اتر جائے گا، نہ اترا تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ ساس نے مجھے تسلی دی، مگر اماں مجھے اپنے میکے جانا ہے، میں امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، تیرے دل پر کون سا بوجھ ہے؟ انہوں نے میرا جیسے مذاق اٹھایا۔ ہم بھی تو اپنے میاں سے 2 سال دور رہتے تھے۔ ساس مجھ سے اپنے غموں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھی تو ساس نے مجھے تاکید کی کہ میں وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلوں۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ ساس اندر سے ایک کالے رنگ کی بوتل لے کر آ گئی، مجھے چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اب نہ جانے کون سا حکیمانہ علاج شروع ہونے والا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ ساس نے کالے رنگ کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکالا اور میرے سر پر لگانے لگی۔ تیل عجیب سا تھا، مجھے بہت سخت جلن ہو رہی تھی، سر کے بالوں میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ ماں جی نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی سر کی مالش بھی شروع کر دی۔ اب تجھے آرام آ جائے گا، یہ ایسا تیل ہے جسے 7-8 دن لگانے سے ہی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں پہلے یہی استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہماری ساس بھی ہمیں یہی لگایا کرتی تھی۔ اب میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ بہانہ تو کر لیا تھا مگر بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس کڑوے تیل کی مالش کروانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد ساس نے مل مل کر میرا سر چھوڑا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ یہ میری ساس سے روزانہ ملنے آتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں خوش ہو گئی اور بولی، آجا نسرین، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو میرے بہو کے سر میں سخت درد تھا، میں نے اسے تیل کی مالش کی تو صحیح ہو گئی۔ اماں نسرین کو بڑی مینحت انداز میں دیکھ رہی تھی۔ برحال میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان عورت کے لیے چائے بنا کر لائی تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا، چائے پینے سے بھی جیسے الٹی آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کے 7-8 بجے میری آنکھ کھلی، دیکھا میری ساس نے کھانا بنا کر تیار کر لیا تھا۔ مجھے پیار سے جگایا اور کہنے لگی، آجا آ کر کھانا کھا لے۔ میں نے کھانا کھایا مگر میرے منہ کا ذائقہ تک بدل چکا تھا۔ اس تیل نے تو میری طبیعت بوجھل کر دی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھا لیا تو حیرت مجھے تب ہوئی جب میری ساس نے مجھے کہا، تو جا کر اپنے کمرے میں سو جا۔ حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاؤں دبانے کا کہتی، کبھی صبح کے برتن دھونا ہوتے، مگر آج میری ساس کا مہربان رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ مجھے اس طرح نیند آئی جیسے کسی کو نشہ پلایا گیا ہو۔ صبح تک میں سوتی رہی، مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میرا سر بھاری تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، ماں جی آپ نے تو مجھے صحیح کرنے کے لیے یہ تیل لگایا تھا، مگر اس نے میری حالت خراب کر دی ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے۔ اماں نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی 7-8 دن بعد ہی تو یہ تیل اثر کرے گا، ابھی تو تیری طبیعت خراب ہے، کیونکہ اس تیل کی وجہ سے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساس کی بات سے میں مطمئن تو ہو گئی مگر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگلی رات بھی جب میری طبیعت ایسے ہی بوجھل ہو گئی تو میں نے سوچا اس مالش سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ میں اپنی ساس کی تیل والی بوتل ہی چھپا دوں۔ چانچا میں نے ایسا ہی کیا۔ شام کو اپنے کسی کام سے باہر گئی تو میں نے وہ تیل کی بوتل لے کر کمرے میں چھپا دی۔ اگر زیادہ ہنگامہ کیا تو بتا دوں گی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ روز روز کی اذیت۔ تبھی میں نے تیل تو چھپا دیا، مگر ساس نے آ کر رات کو جو تیل ڈھونڈنا شروع کیا، بولی تیری مالش کرنی ہے، تیل گم ہو گیا ہے۔ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب اماں جی نے اس قدر شور مچایا کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے عجیب سا لگا، واللہ اماں جی کو میرے سر کے درد سے اتنی بھی کیا غرض۔
तो ये होता कि मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बेहतर होता, तो मैं इस बात को मान सकती थी। लेकिन उनका रवैया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई की तवक्को रखना गैर मामूली सी बात थी। बहरहाल मैं जो पहले इरादा किए बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे सारी रात नींद नहीं आती, सुबह बोझल आंखें होती। वाला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती। एक दिन के लिए या एक रात के लिए। उस रात मैं अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे से बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला लगा दिया। मुझे हैरत हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ जैसे सरगोशियों की थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों का गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ें भी आ रही थीं, जबकि 2-4 आदमी एक साथ थे। मेरी सास ने न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की रोशनी बुझा रखी थी। मैंने देखा 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे सहन से बाहर वाले दरवाजे से जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छुपे आकर मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने भी तो मिल सकता था, यानी दिन के वक्त, मगर मैं रात को ही क्यों। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं तरोताज़ा थी, मेरी तबीयत ज़रा भी ख़राब नहीं हुई। मेरी सास ने मुझे देखा तब बोली, रात को तो सो गई थी ना। अम्मा सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब रहेगी। मैं आज ही तुझे नसरीन की माँ के पास ले चलूँगी। तुम तो जानती हो वो कितनी माहिर है, इससे हर किस्म की औरतें दवा लेने आती हैं, चाहे वो बीमार हों या तंदुरुस्त हों, खुश हों या परेशान। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि नसरीन की माँ महज एक नीम हकीम के सिवा कुछ नहीं, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं अम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वो कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता तू सही है या नहीं, आज ही मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तो फिक्र नहीं कर, शाम को तैयार रहना। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अरे अम्मा, मैं सही हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे गुस्सा आ गया, मेरे साथ जुबान न चला, वरना तेरे शौहर को प्रदेश में बता दूंगी कि तू मेरी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमज़ोरी थी, उसका अम्मा फ़ायदा उठाती थी। शाम को मैं तैयार हो गई, मेरी सास ने भी तैयारी पकड़ी और हम नसीन की माँ शादिया के पास पहुँच गए। शादिया अपने मोहल्ले में एक हकीम मशहूर थी, मगर सच तो ये कि मुझे इन दवाइयों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अम्मा ने उसके सामने मेरा मसला बयान किया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। अम्मा के बात सुनकर उसने कुछ लम्हे को सोचा और फिर एक लड़की को आवाज़ दी, जो इसी तरह काली सी शीशी लेकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा ने वो शीशी ली और नसरीन की माँ का शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर वो बड़ी खुश लग रही थी, जैसे उन्होंने मेरे लिए आब हयात ले लिया हो। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान ली, आज कुछ भी हो जाए, अपनी सास को ये तेल अपने सर पर नहीं मलने दूंगी। मैंने भी अपनी सी कर दिखाई, सरसों के तेल में काली स्याही मिला दी और उस बोतल में डालकर वो वाला तेल उन्हें पौधों में जाकर गिरा दिया। सास को शक भी नहीं गुजरा कि मैंने बोतल में से तेल तब्दील कर दिया है। रात को हस्बे मामूल उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे साल की मालिश करने लगी। जब मालिश मुकम्मल हो गई तब मुझे थपथपाते हुए बोली, जा जाकर अपने कमरे में सो जा, 7 दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी। है मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे नींद ना आ रही थी, बिल्कुल भी बोझल नहीं थी, जबकि तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था। थोड़ी देर लेटी रही, तब मुझे लगा जैसे वही आवाज़ आज भी आ रही है। आज मेरा दरवाज़ा बंद था, चूँकि सास को यकीन था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए वो दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज़ें बढ़ गईं तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो ये आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ को गई तो मुझे ये देखकर खैरत हुई कि 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वो उन्हें मेरे जहेज़ के बर्तन। लड़कों ने अपने चेहरे ढांप रखे थे। उफ खुदाया, तो क्या मेरे जहेज़ का सामान। ये सोचते ही मुझे चक्कर आ गए।
आगे बढ़कर मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा, अम्मा जी, ये कौन है और मेरे जहेज़ के बर्तन उन्हें क्यों दे रही हैं? मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई। तुम यहाँ कैसे? तुझे कहा था ना कि सो जा। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा, अम्मा, मैं नहीं सो सकती। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दें। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। जो चाहिए मैं करूं, मेरा घर है, मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। यह देखकर वो लड़के जल्दी से घर से भाग गए, मगर मेरे जहन में बात बैठ चुकी थी। मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ली। बोली कि तेरे जहेज़ का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े ही दिन की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, मगर तू तो अपने जहेज़ को हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद ये काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मैं कभी भी उनको मना ना करती। फिर ना जाने क्यों उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी तकरार बढ़ी तो वो मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। मैं अभी उसे फ़ोन करूंगी, बताऊंगी कि तू रात को तुझे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी ये बात भी मैं समझ गई थी। तो फिर आप क्या चाहती हैं? एक बात फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई। लेकिन आखिर कब तक? मैंने दिल में सोचा कि कब तक इस तरह ब्लैकमेल होती रहूंगी, कब तक ये मुझसे सारी बातें मनवाएंगी। ये सोचकर ही मेरे दिल में खौफ सा आ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उस दिन मैं भी उनके सामने डट गई। करें आप फ़ोन, जिसको मर्ज़ी करें, अपने जहेज़ के सामान से एक भी चीज़ मज़ीद नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को तैश आ गया और उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई और वो गुस्से में बाहर आ गई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा यकीनन किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। अब फिर उन्होंने ऐसा ही किया। पर देर से मेरे शौहर को फ़ोन किया। मैं भी पास ही खड़ी थी। वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर उनकी बातों में इस कदर जहर भरा था कि असगर भी मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डियां सही कर दूं, मगर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी। असगर ने जब मुझे कह दिया कि तुम अम्मा के मामले में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा, मेरा दिल कांप कर रह गया। असगर बहुत गुस्से में थे। जाहिर है उनकी माँ ने जो जो बातें कही थी वह सुनने के बाद कोई भी गैरतमंद शौहर अपनी बीवी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर मेरे लिए तो इस बात का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके प्रदेश जाते ही मैं भटक गई थी और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी अमानत में खयानत की। इस बात ने मुझे आंसू में तर कर दिया। सोच नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मुझसे ऐसा रवैया रखेगा। मुझे तलाक हो गई। उन्होंने 3 अल्फाज कहकर मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है मेरा कसूर तो नहीं था, मगर अम्मा अब्बा परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस भी रिश्ते पर कहा मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की रजामंदी का मुझे ये सिला मिला कि मेरी शादी एक माकूल इंसान से हो गई, जिसे कमाने के लिए बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ा।